سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم کا اسپیشل ایڈیشن سندھ بھٹشا میں۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیے چلتا ہوں آپ کو اس سرزمین پہ کہ جو بھٹائی کی سرزمین ہے۔ اکھر پڑ الف جو بیا ورک وسار، اندر تو اجار پناہ پڑھندے کیترا۔ آئیے اللہ والوں کی درگاہ ہو، ان کا گھر ہو، ان کا کلام ہو، ان کے بیت ہوں، ان کے اشعار ہوں، یا پھر ان کی کہی ہوئی کوئی بات، یا پھر وہ شاہراہ جہاں سے وہ گزرے ہوں، سکون ہی سکون ہوتا ہے، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، مہک ہی مہک ہوتی ہے۔ میرے دائیں جانب شاہ عبد اللطیف کا روضہ ہے، بائیں جانب ان کے بابا کا روضہ ہے، اور میرے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ محمد اسماعیل، فقیر محمد اسماعیل میر جت ہیں۔ یہ یہاں جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کو معلومات دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اور اس حوالے سے، اس کے پس منظر کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ خوش آمدید، کیسے مزاج ہیں آپ؟ تھینک یو سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ کرم مالک کا۔ یہ ہماری دوسری ملاقات ہے، اس سے پہلے بھی جب میں یہاں آیا، مگر اس روضے کے حوالے سے دائیں جانب کیا تاریخی حوالات ہیں اور یہ بائیں جانب ہمارے کیا ہے؟ اس طرف حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی جن کے وجہ سے مشہور ہے، یہ پورا شہر جو ہے ان کی وجہ سے آباد ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا وسن بگیو۔ اس کے بعد حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور ان کے والد جب یہاں مائیگریٹ کر کے آئے تو یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ریت کا ایک ٹیلہ ہے۔ اچھا، ریت کے ٹیلے کو ہم کہتے ہیں بھٹ، جی، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی۔ بھٹائی جو ہے، بھٹ جو ہے وہ ریت کے ٹیلے کی وجہ سے بھٹائی نام ہے۔ ویسے سائیں کا نام جو پورا ہے وہ ہے حضرت شاہ عبد اللطیف، شاہ عبد اللطیف۔ لطیف نام ہے، اور بھٹائی جو ہے، بھٹ جو ہے وہ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں، تو ہم اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں بھٹائی۔ بھٹائی۔ ابھی بھی اس وقت پیچھے شہر کے پیچھے پچھلی جو سائیڈ ہے وہاں پہ وہ ریت کے ٹیلے موجود ہیں، وہ بھٹ موجود ہے۔ تو یہ جگہ بھی سارے شہر سے اونچی ہے، یہ ریت کا ٹیلہ جو ہے اونچا تھا، تو یہ پورے شہر سے اونچی جگہ ہے۔ ابھی اس وقت ہم بھٹ کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس طرف جو ہے وہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی اور سائیں جمال سائیں، اچھا، یہ ان کے ساتھ جو دو مزاریں ہیں، ہاں وہ مزاریں موجود ہیں۔ اس طرف سائیں کے والد بزرگوار سید شاہ حبیب سائیں، اور اس کے علاوہ جو آج تک گدی نشین گزرے ہیں ان کی مزاریں بھی اس میں اندر موجود ہیں۔ اچھا، ہاں، اور زائرین جب آتے ہیں تو ان کو معلومات دینا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہاں پہ جو رسمیں ہوتی ہیں دربار پہ روزانہ، کچھ 6 ماہی ہوتی ہیں، کچھ ماہانہ ہوتی ہیں، کچھ سالانہ ہوتی ہیں، تو لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی رسم کون سے ٹائم کون سے دن اور کون سی ڈیٹ پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے یعنی کارآمد چیز ہے، کیونکہ
अगर बंदा टाइम पे ना पहुंचे, किसी भी इवेंट के टाइम पे ना पहुंचे, तो ये अच्छा नहीं है। चले हम तो टाइम पर आ गए, अब देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या तबरुकात हैं। शाह साईं के वालिद से उन्होंने सब कुछ सीखा, इल्म और हिद्दत और ये सारी चीज़ें, जो फ़कीरी है, जो परवरदिगार का इरफान है, मार्फत है, वो आपने अपने वालिद से पाई है? बिल्कुल, साईं ने तरबियत अपने वालिद से ली है, लेकिन बचपन से साईं का जो था तबीयत जो थी वो फ़कीराना थी। और साईं ने साईं जब भी हमेशा सैर सफ़र पे जाते थे तो 3 बुक साईं के साथ हमेशा होते थे। अच्छा। एक मेन कुरान शरीफ, एक साईं के परदादा का रिसाला शाह करीम अब्दुल करीम बुलड़ी वाला जो है उनका रिसाला, और एक मसनवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी। वाह। तो ये 3 बुक हमेशा साईं के साथ होते थे। और उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें साईं ने, जैसे साईं ने जो सुर लिखे हैं अपने कलाम में, तो एक सुर लिखा है केडारो। केदारो। हाँ, उसकी संस्कृत में मीनिंग है कि जंग का मैदान, उसमें पूरा वाक़या करबला कोड है। उसके अलावा साईं ने अल्लाह की वहदानियत और जो पैगंबर हमारे पास आए हैं, जो अल्लाह के वली, जो अल्लाह का मैसेज जिन जिन के थ्रू आया है, तो वो सारा साईं ने अपने कलाम में, यहाँ की सकाफ़त, यहाँ की ज़ुबान, यहाँ का कल्चर, ये सब कुछ साईं ने अपने कलाम में उस कोट किया है। माशाल्लाह। आइए। इस वक्त देख रहे हैं कि एक तो शाह साईं के वालिद साहब की कब्र है, रोज़ा है, साथ साथ और भी दीगर कब्रें हैं, सब अहलो अयाल हैं, ख़ानदान वाले हैं? जी बिल्कुल, ये साईं के वालिद बुज़ुर्गवार हैं सैयद शाह हबीब शाह साहब, और उसके अलावा जो गद्दी नशीन गुज़रे हैं उनको भी इसमें मकबरे के अंदर रखते हैं। अच्छा। तो इस वजह से उनको भी जो है ना वो अंदर रखा गया है। बाकी जो गद्दी नशीन गुज़रे हैं अच्छा। उनकी मज़ारातें हैं। सही। जैसे अभी इस वक्त जो 11वें गद्दी नशीन जो है, वो जो कोने में मज़ार है, वो सैयद निसार हुसैन शाह साहब, ये 11वें गद्दी नशीन थे। लास्ट में जो मज़ार है सैयद गुलाम शबीर शाह साहब, ये 10वें गद्दी नशीन थे। इस तरह से साईं से लेके आज तक 12वां जो गद्दी नशीन है वो इस वक्त USA में है, सैयद वक़ार हुसैन शाह साहब। यहाँ पे जो उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उनके छोटे भाई के पास हैं, सैयद ख़ावर हुसैन शाह के पास। ठीक, माशाअल्लाह। आइए। तो शाह साईं का एक बड़ा शाहकार शाह जो रिसालों के नाम से मशहूर है, कुरान करीम से भी आपको ख़ास उल्फत हासिल है। मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ कुरान करीम रखा हुआ है और एक तरफ शाह जो रिसालो है, इसके पीछे क्या है? ये जो कुरान शरीफ है, ये साईं ने ख़ुद अपने फ़कीरों से लिखवाया, ख़ुद पढ़ा करते थे, और उसके बाद इसका जो थोड़ा सा काम रह गया था वो फ़कीरों ने कंप्लीट किया था। तो ये तब से बहुत ही हमारे लिए एक कीमती चीज़ है। वैसे तो कुरानी नुस्खे बहुत हैं, लेकिन ये साईं के हाथ का है, तो इसलिए इसका तकद्दुस ज़्यादा हम समझते हैं। सही। और ये शाह जो रिसालो, हाँ, ये जो है शाह जो रिसालो में, ये जो तब साईं ने लिखवाया था, ये साईं के दौर में अबुल हसन की सिंधी थी, और वो सेम्टो अरबी, यानी उसमें ज़ेर ज़बर शद मद पेश थे, और ये आजकल जो हम पढ़ते हैं वो है आसान सिंधी। तो ये दोनों का सैंपल दिखाया गया है। और इस रिसाले को हम कहते हैं गंज शरीफ। गंज शरीफ में जैसे कुछ और जो अल्लाह के वली हैं उनका कलाम भी है, शाह जो रिसालों में सिर्फ साईं का कलाम है। तो इसमें वो दोनों चीज़ें, ये वो गंज है जो साईं ने खुद लिखवाया था, इसको फिर कल्चर डिपार्टमेंट ने कॉपी करवा के यहाँ रखा है, लेकिन ये असल वो गंज है जिसकी कॉपी है। सही है। अब हम, मेरे ख्याल है, ये जो फ़कीर बैठे हुए हैं, सुर छेड़ रहे हैं, इसकी तरफ चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। Yeah.
नाज़रीन इफ्लामी में खुश आमदीद। हम अंदर से ज़ियारत करके आए हैं, यहाँ बिल्कुल पास आगोश में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सुर लगाए जाते हैं, तंबूरों मेरे पास है जो कि शाह साईं की पहचान है, जो शाह साईं ने जिसको मैं कहता हूँ कि तनव्वो दिया है। इसकी वजूहात क्या हैं, सब बातें करेंगे आज, हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर इस वक्त इस्माइल साहब, फ़कीर मोहम्मद इस्माइल साहब हमें लेके बैठे हुए हैं इस पूरी संगत में जहाँ पे सुर छेड़ा जा रहा है। सुर मारवी नहीं से अभी सुर होगा, सुर ससवी का, सुर आबरी। सुर आबरी यानी पानी के सिवा जो हम जदोजहद करते हैं, जो हम जिस मिशन पे निकलते हैं, तो पानी के सिवा बिल्कुल। अच्छा, तो 5 सुर हैं ससवी के। पहले का नाम है आबरी, दूसरे का नाम है देसी, फिर कोहारी है, फिर उसके बाद हुसैनी है, उसके बाद ये जो है ना इसका मारवी। हाँ बिस्मिल्लाह। नहीं, मारवी आखिर में है सर, वो अलग कैरेक्टर है। अच्छा अच्छा। हाँ, आबरी है, माजूर है, देसी है, कोहारी, हुसैनी, 5 सुर हैं ससवी अच्छा, के। ये आपने मुझे बताया ये बाएं हाथ पे, इस पे बाएं शोल्डर पे ही होगा जी, उसी पे ये इसकी होगा। रस्म। ठीक। तुम्हारा बीज़ात तुम्हारा बीज़ात मैं फ़कीर साहब ये पूछना चाहूँगा, ये जो आप कलाम पढ़ रहे थे इसके माने क्या थे और क्या सोच के पढ़ रहे थे? अलग कैफियत सी थी। ये जो भी अल्लाह के वली हैं वो अपने कलाम के थ्रू लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह की वैदानियत है, उनके अल्लाह के जो रसूल हैं, महबूब हैं, इमाम हैं, उनका ज़िक्र है। उसके अलावा बाकी जैसे ज़िंदगी कैसे हमें गुजारनी है, कैसे जद्दोजहद करनी है, क्या करना है, किसके लिए मकसद हमारे आने का क्या है, दुनिया में इंसान के आने का मकसद क्या है, साईं ने सब कुछ अपने कलाम में ये पूरी एक, मैं अगर कह दूं कि पूरी ज़िंदगी का जो एक वो मकसद बता दिया। साईं ने 2 लाइनों में, मैं आपको वो एक सिंधी में पढ़ के फिर उसका तर्जुमा बताता हूँ। साईं ने कह दिया कि कदें थे जे कन, कदें थे जे वात, कदें थे जे बकरो, कदें थे जे कात। तो साईं ने कहा कि कभी आप कान बन जाओ, आप सुनो, दूसरों को सुनो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कभी सुना दो, कभी किसी को सुना भी दो, और कभी कट भी जाओ और कभी काट भी दो। तो हक के लिए काट भी दो, भले हक के लिए कट भी जाओ। तो साईं ने कहा कि कदें थे जे कन,
कॾहिं थिजे वात, कॾहिं थिजे बकरो, कॾहिं थिजे कात। वाह। तो कभी ये पूरा जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है ना, साईं ने दो दो लाइनों में बता दिया, वाह, सिर्फ यानी कम्प्लीटली। तो ये साईं के इल्म का, ये इल्म की इंतहा है, कमाल है ये इनकी हम शायरी जहाँ का। इस वक्त मौजूद हैं, ये शाह साईं का घर है। ये तख्तगाह भी कहा जाता है, हवेली भी कही जाती है। तख्तगाह इसलिए कि जो चारपाई साईं की इस वक्त उस वक्त की पड़ी हुई है, वो तख्त के मायने है, इसमें वो तख्ते लगे हुए हैं, तो तख्त के मायने चलें है, देखें इसलिए हाँ जी बिल्कुल आ जाए। हम लोग इस वक्त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के इस दौलत कदे यानी आपके घर पे आए हैं और ये आपका कमरा है और इस वक्त मेरी आंखों के सामने चंद नवादरात हैं जिनमें से आपका असा, छड़ी और दीगर चीज़ें भी हैं, चारपाई भी है। मैं फ़कीर साहब से पूछना चाहूँगा, फ़कीर मोहम्मद इस्माइल मीरजाद, ये वो कमरा है जहाँ पे आप आराम फरमाया करते थे और ये क्या क्या चीज़ें हैं? जी जी बिल्कुल, एक चारपाई है जो तख्तनुमा है, इस हवेली को हम हवेली भी कहते हैं, तख्तगाह भी कहते हैं। तख्तगाह इसलिए कि ऐसे तख्त पे बैठना या इस पे आराम करना, आजकल तो हम ऐसे तख्त पे ना आराम नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत नीचे सख्त है। अच्छा। हाँ, वो कोई वो से डोरी से बना हुआ नहीं है, ये जो फटे होते हैं उससे बना हुआ है। तो ये बहुत ही एक यानी इससे आराम आने के बजाय दिक्कत ही होती है, दिक्कत होगी, आराम नहीं, क्योंकि साईं ने बहुत सारे अपने अशार में आराम की बात नहीं की है। अच्छा। हाँ, कहा है कि आशिकों ने कभी आराम नहीं किया। तो साईं का मकसद ये है कि ये जो ज़िंदगी है आराम के लिए नहीं है, ये जुस्तजू के लिए है। तो साईं को और जो गिफ्ट मिलते थे उसमें ये आसा है, छड़ी है, ये हम हाथ में ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये आप देखें, दिखाएं, ये जो हमारे नाजरीन हैं जी उनको दिखाएं, क्योंकि साईं के तबरुकात और भी बहुत सारी जगहों पे पड़े हुए हैं। यहाँ से कुछ लिखा हुआ भी है? हाँ बिल्कुल, इसमें वो जिसने गिफ्ट किया है उन्होंने यानी जैसे पाक नाम है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और हुजूर का नाम लिखा हुआ है, सो उन्होंने ये ज़ाहिर ये जो पाक चीज़ है जिन पे बैठ के जिक्र करते थे, या ऐसे जो छोटी बैरागिन होती है तो वो उसकी साइज़ जो है ना, बैरागिन जो होती है उसकी साइज़ इतनी होती है, ये इतनी होती है, उस पर ना ऐसे ऐसे सर रख के, कंधा रख के भी आदमी इबादत करता है, ऐसे बैठ के ना। अच्छा। तो वो इधर ज़मीन पे रख के और उस पर ऐसे सर रख के भी इबादत करते हैं। ये जगह, ये जो जगह है ना, ये रख के भी इबादत करते हैं। अच्छा। जिक्र करते रहते हैं, तो उसको बैरागिन कहते हैं। इतनी जो छोटी होती है वो बैरागिन होती है, ये आसा है। और ये नीचे से नोकीली होती है ऐसे? ये इसलिए कि वहाँ जब पहले के दौर में जब बैठते थे तो वहाँ आग वगैरह जलाई जाती थी, तो वो आग को वो सेट करने के लिए ये जो नोकीली है, या इसको ज़मीन पे लगा के भी बैठ जाते थे। तो मैं चूँकि सुनने देखने वाले इसको महसूस तो कर सकते हैं, मगर ये भारी है और एक ताकतवर आदमी इसको आसानी से उठा सकता है, आजकल तो नौजवान नहीं उठा सकते। ये आपके हवा के लिए है? नहीं, ये बस ऐसे ही आज का है, ये तब का नहीं है। अच्छा। नहीं, ये आज का है। और ये सारी चादर वगैरह भी आज ही की? ये अभी की, ये अभी की। सिर्फ जो चीज़ असल है वो चारपाई है, और ये कलर हुआ है, ये अभी इसको इन्होंने फिर दोबारा बनाया, रिनोवेट किया है। ठीक है, ज़बरदस्त। अब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम चलते हैं, साईं का कुआं है। अच्छा। जो साईं ने उस टाइम पे बनवाया था। आज तक उस कुएं का कमाल ये है कि पानी जो है वज़ू का या पीने का दरबार पे, वो तब से लेके आज तक उसी कुएं से जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम उस कुएं की जानिब जा रहे हैं और आप वफ़े की जानिब जा रहे हैं। आप भी लौट कर आएंगे, हम भी लौट के यहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आज हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की उस मार्फत के सफ़र में शरीक होना चाहते हैं और जो नवादरात, करामात आपकी यहाँ पर हैं उसको महसूस करना चाहते हैं, शाहिद बनना चाहते हैं। अलिफ़ लाम मीम में आपका इंतज़ार रहेगा। अलिफ़ लाम मीम में खुशामदीद। हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, मेरे सामने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का घर है, जिसको बैत कहते हैं, तख्तगाह है। उस तरफ आपका रोज़ा है और पीछे अकब में ये कुआं है जिसको आपने ख़ुद से खुलवाया है, और इसमें आज तक इसकी करामत ये है कि इसका पानी इस्तेमाल हो रहा है, जारी है, जबकि आसपास के दीगर जो कुएँ हैं, जो मकानात हैं, वो अब यहाँ पे नहीं मौजूद है। मैं पूछना चाहूँगा फ़कीर साहब से कि इस कुएँ की खासियत क्या है और ये शाह सईद ने अपने हाथ से खुदवाया है? साईं हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई जब यहाँ पे आए थे, ज़ाहिर है जहाँ भी आप जाके रहना चाहते हैं तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है, पानी ज़िंदगी है। तो साईं ने ये कुआं उस टाइम बनवाया था, आज तक ये वही कुआं चल रहा है। और वैसे भी आप साईं के सैर व सफ़र जो भी पढ़ेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, चाहे आप लाहौर चले जाएं
चाहे आप हिंगलाज चले जाएं, चाहे आप कच्छ भुज आदिपुर गुजरात चले जाएं, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो रास्ते में आपको लोग बताएंगे कि ये कुआं जो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने बनवाया था। आप लाहौर चले जाएं, रास्ते में आपको बताएंगे कि ये वहाँ पे लोग स्टे करते हैं, रात रहते हैं, कि ये कुआं है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के नाम से, ये मस्जिद हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने बनवाई थी। ठट्टा पे आप जाएंगे तो ठट्टा में आपको वो जगह मिलेंगी। खैरपुर की तरफ जाएंगे, लाड़काना की तरफ जाएंगे, मदेजी है, वहाँ पे भी साईं के तबरुकात, और वहाँ पे और जहाँ जहाँ पे साईं रहते थे ना, तो उन जगहों को कहते हैं कि तकिया लतीफ़। अच्छा, यहाँ आराम किया। वो साईं ने तकिया है उनका, आज तक वो बने हुए हैं। वो आस्थान जो है वो 300 से ज़्यादा हैं। वो आज तक सिंध में और हमारे पड़ोसी मुल्क में बलूचिस्तान में साईं के वो जगह, वो माग मकान जो है तकिए, वो महफूज हैं। वो जो बीच में जगह है जहाँ पे घास रखी हुई है, शायद झाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो उसका क्या बैकग्राउंड है? ये यहाँ पे जिक्र समा होता है। अच्छा, ये माहाना महीने में एक रस्म होती है, नौचंदी रात जो होती है, जिस तरह से इतवार की शाम को, तो उसको हम कहते हैं साव सुमार हमारी लैंग्वेज में। अच्छा, यानी वो जो चांद वाली रात होती है, और उसमें जो वो पहली इस्लामी महीने की जो पहली सुमार की जो शाम होती है, तो उसमें ये रस्म की जाती है साव सुमार। अच्छा, उसमें हमारे जो फ़कीर हैं दरबार से रिलेटेड, वो काले कपड़ों में मलबूस, वो इस तरह से उनकी दो हाथ ऊपर होते हैं, और वो अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह का विरद करते हुए वो वहाँ से आते हैं। आग जो है ना, मच जो होता आप है, करके दिखा सकते हैं कैसे होता है वो? हाँ, वो इस तरह से उनके हाथ होते हैं। अच्छा, वो अल्लाहू, इस तरह से वो अल्लाहू का विरद करते हुए कंटिन्यू वो चलता रहता है। अच्छा, वो जब ख़त्म होता है, उसके सामने एक छोटी सी जगह और बनी हुई है, वहाँ पे जो गद्दी नशीन होता है वो बैठता है सामने, और वो फ़कीर अल्लाह का विरद करके वो जब कंप्लीट करते हैं, वो जब विरद कंप्लीट होता है, तो उसके बाद पूरे आलम इंसानियत के लिए, यानी बगैर किसी फ़िरके वारियत के, पूरे आलम इंसानियत के लिए एक इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है। अच्छा, उसके बाद कुछ मीठा तकसीम किया जाता है। इस रस्म को हम कहते हैं साव सुमार। ये महीने में एक दफ़ा होती है। और सामने ये जो जगह बनी हुई है जी, सामने आप देख रहे हैं, इसका जो सेंटर में चबूतरा है, ये नकार खाना है। अच्छा, इसमें रोज़ाना शाम को मगरिब की नमाज से पहले नकारे बजाए जाते हैं। अच्छा, और लोगों को यानी बेदार करने के लिए कि भाई अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो इस तरह से एक तरीका है लोगों को बुलाने के लिए। देखिए, मैं अगर अभी अगर कुरान शरीफ का कोई कर दूं तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ बजाना शुरू कर दूं या कोई इस तरह की कोई बात मगर करूं, ये तो लोगों इस्लामी की तरीका तो नहीं है? नहीं है, लेकिन ये अवैध तरीका है। अच्छा, जिनमें ये लोगों को जमा करने का और एक तबलीग जो है, सही। एक चीज़ मुंतकिल, एक मैसेज देने का तरीका है। फ़कीर मोहम्मद इस्माइल साहब, मैंने देखा हम जिस भी दरगाह पे गए वहाँ ये अलम नस्ब होते हैं। अब ये इस अलम को भी मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत लंबा है, बहुत दराज है, कदावर है। इसकी तारीखी हैसियत क्या है, या उस ज़माने से ये चला आ रहा है? नहीं, तब से नहीं है, तब से नहीं है। ये पहले हमारे साईं बड़े गुलाम शाह साईं, फिर साईं मीर मोहम्मद साईं, उन्होंने लकड़ी का आलम लगाया था वहाँ थोड़ा आगे। अच्छा, उसके बाद हमारे एक साईं जैदी साहब थे कराची के, जी, सैयद मुशर्रफ हुसैन जैदी, उन्होंने लोहे का आलम दिया था। वो यहाँ पे नस्ब था काफ़ी अरसा। अच्छा, अभी एक औरत थी खातून, जिसका नाम था माई गुल्ला, वो टंडो अलयार से हैं। उन्होंने ख्वाब देखा या उनकी कोई मन्नत थी, तो उन्होंने ये अभी कुछ टाइम पहले नस्ब करवाया है। अच्छा, ये दम देख सकते हैं इसको? जी बिल्कुल। उनका नाम के हिसाब से वो बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा, ये माई गुला के नाम से, वो मंठार भट्टी साहब की जो है ना, वो सारे नवादरात हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये जो नीचे उनका नाम लिखा हुआ है माई गुलाम, वो घरवाली हैं मंठार भट्टी साहब की। उन्होंने अपने जो है ना वो हाथों से नस्ब करवाया यहाँ के उस वक्त गद्दी नशीन सैयद निसार हुसैन शाह साहब, अच्छा, उनको साथ लेके उनको बता के फिर ये लगवाया था यहाँ। आज के गादी नशीन? इस वक्त उनके बेटे हैं सैयद निसार हुसैन शाह के, वो 12वें गद्दी नशीन है, उनका नाम है सैयद वकार हुसैन शाह। वो इस वक्त बाहर होते हैं? जी, वो असल में यूएसए में अपने काम के हिसाब से। उनके छोटे भाई हैं सैयद खावर हुसैन शाह, जो इस वक्त दरगाह के जो इंतजामात हैं या सिस्टम है वो उनके हाथ में है। उसको वो कायम मकाम गादी नशीन है सैयद खावर हुसैन शाह। चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मार्फत है, भिट भी है, जहाँ पे बैठकर आपने, मैं कहता हूँ कि दुनिया को अपनी तरफ खींचा है, मदऊ किया है। तो इस एक बात तो कम से कम पता लगती है कि आपको कामयाब होने के लिए फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आदमी होकर शुरू नहीं करते, बल्कि आप शुरू करते हैं और आप बड़े आदमी हो जाते हैं। तो ज़मीन पे बैठ के जो हुकूमत करता है आसमानों पे, और जो हुकूमत करता है दिलों पे, उसको शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं।
असीं लतीफ़ साईं जी ज़ियारत करी आया आहियूं ऐं हिते सभु बाज़ार में वेठा आहिनि। सिंधी माण्हू महिमान नवाज़ हूंदा आहिनि। मूं वटि मूंसां गॾु साईं जुमन वेठो आहे। मां हिन सां सवाल कंदुसि, साईं हिते छा बाज़ार इलाही पियो आहे ऐं सभु शयूं हिते फ़रोख़्त जे लाइ वेठी आहिनि? सर असांजो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई साईं दरगाह जेका हूंदी हुई उहा महदूद हूंदी हुई। दरगाह खां पोइ जेको आहे असांजे मार्केटूं जेके ठहियूं आहिनि इहे हाणे ठहियूं आहिनि। इन मार्केटनि खां पोइ दरगाह जे आसपास में रहंदड़ जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जा रोज़गार जेके आहिनि उहे हीअ आहिनि। हीअ जेके शयूं आहिनि असां कराची खां वठी अचूं था, जेके क़दीमी शयूं आहिनि असांजूं हितां जूं हूंदियूं आहिनि। पोइ हिते दुकाननि ते खणी ईंदा आहियूं। पोइ ॿाहिरि जा जेके मुसाफ़िर ईंदा आहिनि, जीअं सिंध हुजे, पाकिस्तान हुजे, उन खां ॿाहिरि मुल्क खां जेके माण्हू ईंदा आहिनि उहे जेको आहे दरगाह भिटाई जी जेका शयूं आहिनि पसंदि करे जेके तोहफ़ो चयो वेंदो आहे, तोहफ़े तौरु जेके आहिनि असांजे दुकाननि ते ईंदा आहिनि। मनपसंदि शयूं हूंदियूं आहिनि जंहिंमें ज्वैलरी जा आहिनि, ड्राई फ्रूट जा दुकान आहिनि, उन्हनि ते ख़रीदारी कंदा आहिनि। अमन अमान जी सूरत हाल कीअं आहे? तमामु बहितर आहे। भिटाई साईं अमन अमान जो पैगाम ॾिनो आहे पंहिंजे बेतन जे ज़रिए, पंहिंजे रिसाले जे ज़रिए। भिटशाह जो माहौल जेको आहे ख़ूबसूरत माहौल आहे। अमन परस्त माण्हू रहंदा आहिनि, मोहबत करण वारा माण्हू रहंदा आहिनि। शाह भिटाई जो जेको पैगाम आहे उनखे आम करण वारा माण्हू जेके आहिनि उहे हिते रहंदा आहिनि। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे मेरी बात हो रही है जुमन साईं से और मैंने देखा कि जो ये कह रहे हैं वैसा नज़र भी आ रहा है और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। लोग नफ़रत नहीं करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मज़हब के नाम पे, अक़ीदत के नाम पे एक दूसरे से उल्फत करते हैं, प्यार है और सिंध की सकाफ़त है कि मेहमान नवाज़ होते हैं। यहाँ भी वो रंग मैंने देखा है। औताक की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कदीमी जो आलात हैं जो उस वक्त शाह साईं के ज़माने से वहाँ रखे हुए हैं। और ये भी मशहूर है कि जब साईं हाशिम ठटवी यहाँ पर आए जो कि शरीयत चीफ थे, इंचार्ज थे, सुप्रीम कोर्ट कह लें, तो उन्होंने सील किया उसको और जब वो सील हुआ, बंद हुआ वो कमरा कि अब ये म्यूज़िक नहीं बजेगा, यानी म्यूज़िक से मुराद वो तंबूर हो, तो ख़ुद ब खुद उसने अपना सुर छेड़ना शुरू कर दिया और नशर किया और वो बजने लगा। और ज़ाहिर है उसको बजता हुआ देखकर बग़ैर किसी हाथ के वो रोक नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसको फिर छोड़ दिया कि अब इसको खुदा जाने या शाह जाने। इस वक्त हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के गिरदनवाह में इस औताक पर हैं। औताक से मुराद सिंध कल्चर में वो मेहमान खाना जहाँ पे लोग आते हैं, आप लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, ज़ियाफ़त करते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे ही माहौल है। छत बहुत कदीम है, यहाँ बैठ के ऐसा एहसास हो रहा है कि जिसको कम व बेश 300 साल होने वाले हैं इस जगह को, और आज भी इसको अब अदब व एहतराम से देखा जाता है। ये सामने उनकी जगह है जहाँ पे वो बैठा करते थे। यहाँ पे बैठने से गुजा हम यहाँ आस पास बैठे ऐं मूंसां गॾु साईं वेठो आहे। साईं मां तव्हां सां सवाल कंदुसि हिन जगह जे बारे में, हिन जो तारीख़ी पस मंज़र छा हुयो? तव्हांजो नालो साईं? साईं अंब। साईं छा हिन तारीख़ी हैसियत हिन शइ जी छा आहे? साईं असांखे जेतिरी ख़बर आहे ओतिरी ॿुधाईंदासीं। असांजे वॾनि खां असां ॿुधो आहे त हीअ सरकार जी बैठक आहे। हा, हिते मच ॿारींदा सियारे में, ॿी फ़ुकरा वेंदी फिरी, इहा असांखे ख़बर आहे। सही है। वधीक असांखे का बि ख़बर न आहे। साईं बता रहे हैं कि इस जगह पे लतीफ़ साईं बैठा करते थे और ये सब उनके मेहमानों की, उनके दोस्तों की, उनके फ़कीरों के बैठने की जगह है, मुरीदों के बैठने की जगह है। और इतना ही हमें मालूम है इस जगह के हवाले से। अलबत्ता ये कि यहाँ बहुत सफाई और सुथराई का अहतमाम भी है और हर चीज़ को उसकी असल हालत में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो छत है या दरवाज़े हैं ये बहुत तारीख़ी हैं, बहुत कदीम है। म्यूज़ियम की तरफ लेके जाना चाहूँगा और वहाँ भी कुछ ऐसी कदीम अशिया हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। चलिए देखते हैं अलिफ़ लाम मीम में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मुंसलिक वो म्यूज़ियम जहाँ पे आपसे मंसूब अशिया रखी हुई हैं। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती वो यकीनी तौर से खुदा के हाथ में होती हैं, मगर कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं वो खुदा के हाथ में नहीं होती। सारा इख्तियार हम खुद पाना चाहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग सिंध की ज़मीन पर बैठकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि खुदा की मार्फत हासिल करना असल मकसद हयात है,
کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو معنی ہے معرفت میں ہے، یعنی ہم نے زمین آسمان اور خاص طور سے ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں۔ یہ معرفت کا شاہکار ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری عین ذمہ داری ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے الف لام میم میں اس پروگرام کو ترجیح دی ہے۔ اس کو نشر کرنے کا مقصد واحداً یہی ہے، خالصتاً یہی ہے کہ آپ یہاں آئیں، آپ اس جگہ کو محسوس کریں اور آپ خدا کی وحدانیت تک پہنچیں، قرب حاصل کریں۔ اور جو سب سے پیارا پیغام میں نے یہاں سے لیا وہ محبت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ کی اہل بیت کی ذات سے، آپ کے اہل بیت کرام کی محبت کو، ان کی محبت کو، الفت کو، مودت کو دل میں اتار کر لوگوں تک پہنچانا اپنے عمل کے ذریعے۔ مجھے محمد اویس ربانی کو یہاں سے دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ اس وعدے کے ساتھ، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔